ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଦରମା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ? ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଦରମା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ? ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି 4 ପଇସା, ବି ହେଉଛି 2 ପଇସା ଏବଂ ସି ହେଉଛି 3ଟି ପଇସା, ଡି ଆସିଲା ଆମର 1 ପଇସା। ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଡି 1 ପଇସା। ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 20:2। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ସି ଆସିଲା, ଡି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଏ ହେଉଛି ପରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ବି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସି ହେଲା ସେମାନେ 3 ପେନି ବଦଳରେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡି ବୋନସ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏହି 4 ଅପସନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ଆସିଲା ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇଥିବାରୁ। ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସି ଚାକିରିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ। ଡି ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଆମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କାହା ହାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାବୁକ ଦିଆଯିବ? ଏ ଯିହୁଦୀମାନେ, ବି ଗାଲିଓମାନେ, ଡି ଅଣଯିହୁଦୀମାନେ ଏବଂ ଡି ମହାସଂଘ। ଏ ଯିହୁଦୀମାନେ, ବି ଗାଲିଓମାନେ, ସି ହେଲା ଅଣଯିହୁଦୀମାନେ ଏବଂ ଡି ହେଲା ମହାସଂଘ।
ଏହାର ସେହି ଆନ୍ସର କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ସି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବେ? କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବେ? ଏ ଯିହୁଦୀମାନେ, ବି ଗାଲିଓମାନେ, ସି ଅଣଯିହୁଦୀମାନେ, ଡି ମହାସଂଘମାନେ। ଏହାର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 4ଟି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସି ଅଣଯିହୁଦୀମାନେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଲେ? କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରିଓ ଏବଂ ପିତରଙ୍କ ମାତା, ବି ପିତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସି ଜେବେଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଡି ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁ। ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରିଓ ଏବଂ ପିତରଙ୍କ ମାତା, ବି ପିତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସି ଜେବେଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଡି ପିତରଙ୍କ ଶାଶୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଜେବେଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏ ହେଲା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ବି ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତା ହେବାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। 8 ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ବି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ସି ସେ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଡି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ସେହି ବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତିରେ ମହାନ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତିରେ ମହାନ ହେବ? ଏ ପ୍ରାଧିକରଣ, ବି ଅବସ୍ଥାନ, ସି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଡି ହେଲା ପ୍ରେମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ସେବା ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ?
ए हला मनुष्य पुत्र देइथिबा दंड को उल्टाइबाकू आस्थिले। बी हेला आमर सेवा करने एवं मानव जाति को बंचाइबा पाई मुक्ति भाव में निज जीवन देवाक आस्थिले। सी हेला इस्राएल को रोमियो मान बदल रक्षा करने को आस्थिले। डी होची से जिहुदी मानक से धार्मिक कपटर उद्धार करने को आस्थिले। यार उत्तर है बी। चलतु 10 नंबर क्वेश्चन गला आमर 11 नंबर आसला। जीशु अंध मान को भेटिया बेले क्यों सहर छाड़ी जाउथिले। जीशु अंध मान को भेटिया बेले क्यों सहर छाड़ी जाउथिले। ए हला जेरूसलेम, बी हला बेथसाइडा, सी हला जिरिह एवं डी हला आमर बेथानिया। वर्तमान सठिक उत्तर आमे देखिबा कौन। समय सरी सरी आसी जाउची। यार सठिक उत्तर है जिरिह। वर्तमान आमर 12 नंबर। माथ्यू अध्याय 20 अनुजाई स्वर्ग राज्य सहित कौन तुलना करा जाइथिला। माथ्यू अध्याय 20 अनुजाई स्वर्ग राज्य सहित कौन तुलना करा जाइथिला। चलतु आम यार ऑप्शन गुड़ी को देखा। ए हला चाष जमीर श्रमिक माने, बी हला बड़ चाष जमीर मालिक, सी गोटे घर मालिक, डी श्रमिक नियुक्ति करने को बाहर जाइथिबा जड़े गुरु। वर्तमान समय आरंभ हो जाए। समय सरी सरी आसिलानी। यार उत्तर होची डी। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस जमींदार की तरह है जो सुबह सुबह अपने अंगूर के बगीचे के लिए मजदूर ढूंढने निकला। उसने उन्हें दिन भर के लिए 1 दिनार देने का वादा किया और उन्हें अपने अंगूर के बगीचे में भेज दिया। मजदूर अपनी मजदूरी पाने के लिए उत्सुक जल्दी से अपना काम शुरू करने के लिए निकल पड़े, ये जानते हुए कि उनका पूरा दिन का काम उनका इंतजार कर रहा है। सुबह के करीब 9 बजे वह बाहर गया और उसने दूसरों को बाजार में कुछ न करते हुए खड़ा देखा। ये लोग भी काम की तलाश में थे, उम्मीद कर रहे थे कि कोई उन्हें काम पर रख लेगा ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तुम भी जाओ और मेरे अंगूर के बगीचे में काम करो, उसने उनसे कहा, पहले समूह को दिए गए अवसर को आगे बढ़ाते हुए, और जो उचित होगा मैं तुम्हें दूंगा। जमींदार की बातों पर भरोसा करते हुए मजदूर मान गए और बगीचे में दूसरों के साथ जुड़ने चले गए। तो वे चले गए। अंगूर का बगीचा मजदूरों से भरने लगा। हर कोई दिन के काम में योगदान दे रहा था। वह दोपहर के करीब और दोपहर के करीब 3 बजे फिर से बाहर गया और उसने ऐसा ही किया। हर बार उसे और मजदूर खाली खड़े मिले, किसी के काम पर रखने का इंतजार कर रहे थे। शाम के करीब 5 बजे वह बाहर गया और उसने दूसरों को अभी भी इधर उधर खड़ा पाया। ये आखिरी मजदूर थे जिन्होंने बिना सफलता के पूरा दिन इंतजार किया था। तुम यहाँ पूरा दिन खाली क्यों खड़े रहे? उसने उनसे पूछा, उनकी दौर प्लाइट के बारे में उत्सुक। क्योंकि हमें किसी ने काम पर नहीं रखा, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाजों में हताशा और आशा का मिश्रण था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया। तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में काम करने जाओ। जमींदार का निमंत्रण एक जीवन रेखा था और कार्यकर्ताओं ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। नए सिरे से आशा के साथ दाख की बारी की ओर बढ़ रहे थे। जब शाम हुई तो अंगूर के बगीचे के मालिक ने अपने मुंशी से कहा, दिन ढल रहा था और हिसाब किताब करने का समय हो गया था। मजदूरों को बुलाओ और उन्हें उनकी मजदूरी दो, उसने निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को उनके प्रयासों के लिए मुआवजा दिया जाए। आखिर में काम पर रखे गए लोगों से शुरू करके और पहले तक जाते हुए भुगतान के इस असामान्य क्रम ने श्रमिकों का ध्यान खींचा। जो मजदूर शाम के करीब 5 बजे काम पर रखे गए थे, वे आए और प्रत्येक ने 1 दिनार प्राप्त किया। वे हैरान और आभारी थे
उन्होंने अपने कम समय के काम के लिए इतनी उदारता की उम्मीद नहीं की थी। सो जब वे आए जो पहले पहर काम पर लगाए गए थे, उन्होंने बहुत कुछ पाने की आशा की। उन्होंने सबसे लंबे और सबसे कठिन काम किया था, दिन की गर्मी को सहते हुए, परंतु उनमें से हर एक को एक एक दीनार मिला। उनके चेहरे लटक गए जब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उतना ही भुगतान किया जा रहा है जितना कि उन्होंने केवल 1 घंटे काम किया था। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो वे जमींदार के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। निष्पक्षता की उनकी भावना को चुनौती दी गई और उन्होंने अपने असंतोष को व्यक्त किया। इन्हें जो आखिर में काम पर लगाए गए थे, उन्होंने केवल 1 घंटा काम किया। उन्होंने तर्क दिया, स्थिति के अन्याय को महसूस करते हुए, और आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया है, जिन्होंने दिन भर काम का बोझ और गर्मी सहन की है। उनकी हताशा स्पष्ट थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कठिन परिश्रम को उचित महत्व नहीं दिया गया है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं दोस्त। क्या तुम 1 दीनार के लिए काम करने को राजी नहीं हुए थे? जमींदार की शांत प्रतिक्रिया उन्हें उनके समझौते की याद दिलाने के लिए थी। अपनी मजदूरी लो और जाओ। उसके शब्द दृढ़ लेकिन निष्पक्ष थे। उनसे आग्रह करते थे कि वे जो मान चुके हैं उसे स्वीकार करें। मैं उसे जो पिछले काम पर रखा गया था वही देना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें दिया था। जमींदार की शिद्रता उसके चरित्र का प्रतिबिंब थी, न कि मजदूरों की कीमत का पैमाना। क्या मुझे अपने पैसे के साथ जो चाहे करने का अधिकार नहीं है? उनके अलंकारिक प्रश्न ने उनके अधिकार और उनके कार्यों की निष्पक्षता पर प्रकाश डाला। या क्या तुम इसलिए ईर्ष्या कर रहे हो क्योंकि मैं उदार हूं? जमींदार के अंतिम प्रश्न ने श्रमिकों को अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर विचार करने की चुनौती दी। तो जो अंतिम होंगे वे पहले होंगे और जो पहले होंगे वे अंतिम होंगे। यह दृष्टांत हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाता है, जहां परमेश्वर की कृपा और उदारता निष्पक्षता की मानवीय धारणाओं से परे है, और जो पहले होंगे वे अंतिम होंगे। अंत में यह किए गए कार्य की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि देने वाले की कृपा और उदारता के बारे में है। दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि हम जो प्राप्त करते हैं उसके लिए आभारी रहें और परमेश्वर के राज्य की निष्पक्षता पर भरोसा करें। अब यीशु यरूशलेम जा रहे थे। रास्ते में वह 12 को अलग ले गया और उनसे कहा, हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य के पुत्र को प्रधान याजकों और व्यवस्था के शिक्षकों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। वे उसे मृत्यु दंड देंगे और उसे उपहास और कोड़े मारने और क्रूस पर चढ़ाने के लिए अन्य जातियों को सौंप देंगे। तीसरे दिन वह जीवित हो जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की मां अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और घुटने टेककर उससे एक निवेदन किया। उसने यीशु के चमत्कारों और बुद्धि के बारे में सुना था और वह उनके दिव्य मिशन में विश्वास करती थी। आशा से भरे दिल और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए वह उसके पास एक अनुरोध लेकर आई, जिसका मानना था कि वह स्वर्ग के राज्य में उनका स्थान सुरक्षित कर लेगा। आप क्या चाहती हैं? यीशु ने पूछा। उसकी आवाज कोमल लेकिन गहरी थी। वह जानता था कि अनुरोध महत्वपूर्ण होगा और वह उसकी इच्छा की गहराई को समझना चाहता था। यह अनुदान दें कि मेरे इन 2 पुत्रों में से एक आपके राज्य में आपके दाहिने और दूसरा आपके बाएं बैठे। उसकी आवाज गंभीरता और एक मां के प्यार से भरी हुई थी, जो अनंत क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा हासिल करने की उम्मीद कर रही थी। तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो, यीशु ने उत्तर दिया। अब उसका स्वर अधिक गंभीर है। वह उसके अनुरोध की गंभीरता और उसके निहितार्थों को समझ गया था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह और उसके पुत्र ऐसी स्थिति का सही अर्थ समझें। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूं? उसने पूछा, उसके आगे आने वाले दुख और बलिदान का जिक्र करते हुए। यह एक ऐसा प्रश्न था जो मात्र महत्वाकांक्षा से परे प्रतिबद्धता और धीरज के दायरे में तल्लीन था। हम कर सकते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। उनकी आवाजें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उनका मानना था कि वे यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तुम सचमुच मेरे कटोरे में से पियोगे? यीशु ने स्वीकार किया, उनकी यात्रा में शामिल होने की उनकी इच्छा को पहचानते हुए। परंतु मेरे दाहिने या बाएं बैठना मेरा काम नहीं। उसने समझाया कि ऐसे सम्मान देना उसके बस की बात नहीं है, बल्कि उसके पिता ने चुने हुए लोगों के लिए सुरक्षित रखे थे। ये स्थान उनके लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। यीशु ने ईश्वरीय योजना की ओर इशारा किया, इस बात पर जोर देते हुए
कि अंतिम निर्णय भगवान के पास ही रहता है। जब दसों ने यह सुना तो वे उन दो भाइयों पर क्रोधित हुए। अन्य शिष्यों ने अन्याय और प्रतिद्वंद्विता की भावना महसूस की, क्योंकि वे भी सम्मान और मान्यता के पदों की कामना करते थे। यीशु ने उन्हें एक साथ बुलाया और कहा। उसने अपने अनुयायियों के बीच कलह देखी और उन्हें सच्ची महानता और नेतृत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाने की कोशिश की। तुम जानते हो कि अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, यीशु ने कहा, सांसारिक नेताओं से तुलना करते हुए जिन्होंने अपनी प्रजा पर शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग किया, और उनके उच्च अधिकारी उन पर अधिकार करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ और प्रभुत्व के लिए अपने पदों का उपयोग करने वाले प्राधिकरण के आंकड़ों के सामान्य अभ्यास पर प्रकाश डाला। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। इसके बजाय जो कोई तुम में महान बनना चाहता है, उसे तुम्हारा सेवक होना चाहिए। यीशु ने घोषणा की, महानता की पारंपरिक धारणा को अपने सिर पर घुमाते हुए उसने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व नम्रता और दूसरों की सेवा में पाया जाता है, और जो कोई पहला होना चाहता है उसे तुम्हारा दास होना चाहिए। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, परंतु सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण छुड़ाने के लिए आया है। यीशु ने मानवता की सेवा और दूसरों के उद्धार के लिए खुद को बलिदान करने के अपने मिशन के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के साथ निष्कर्ष निकाला। उनके शब्दों ने उनके शिष्यों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, उन्हें शक्ति और महानता की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दी। जैसे ही यीशु और उनके चेले यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। लोग इधर उधर जमा हो गए, उनके अगले चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक थे और माहौल प्रत्याशा और उत्साह से भर गया था। भीड़ में उन अजूबों के बारे में बातचीत हो रही थी जो उन्होंने देखे थे और जो शिक्षाएं उन्होंने सुनी थी। दो अंधे सड़क किनारे बैठे थे और जब उन्होंने सुना कि यीशु जा रहे हैं तो वे चिल्लाए। उन्होंने उनके चमत्कारी उपचारों की कहानियां सुनी थी और उनका मानना था कि वह उनकी दृष्टि वापस दे सकते हैं। उनके हृदय आशा और निराशा से भर गए क्योंकि उन्होंने उसे पुकारा, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। वे अपनी सारी शक्ति से चिल्लाए। उनकी आवाजें भीड़ में गूंज रही थी। वे जानते थे कि यह उनके लिए चमत्कार का मौका था और उन्होंने इसे हाथ से नहीं जाने देने की ठान ली थी। भीड़ ने उन्हें डांटा और चुप रहने के लिए कहा, परंतु वे और भी ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे। उनके आसपास के लोग नाराज थे और उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने नजरअंदाज होने से इनकार कर दिया। हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। उन्होंने अपनी याचना दोहराई। उनकी आवाजें तात्कालिकता और आशा से भरी हुई थी। उनका मानना था कि यीशु ही उनके नए जीवन का एकमात्र मौका है। यीशु ने रुककर उन्हें बुलाया। उसने उनकी चीखें सुनी और उनके विश्वास को महसूस किया। भीड़ सिलेंसियो हो गई क्योंकि उन्होंने उसे अंधे पुरुषों की ओर मुड़ते हुए देखा, ये सोचकर कि वह आगे क्या करेगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? यीशु ने पूछा। उसकी आवाज कोमल और दयालु थी। वह उनसे सीधे उनका अनुरोध सुनना चाहता था, उनकी गहरी इच्छा को समझना चाहता था। प्रभु, हमारी आंखों की रोशनी चाहते हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उनकी आवाजें भावना से कांप रही थीं। यह उनके सच का क्षण था और उन्होंने अपने दिलों को उसके सामने खोल दिया। यीशु ने उन पर दया की और उनकी आंखों को छुआ। उनका स्पर्श कोमल था, फिर भी शक्तिशाली था, दिव्य प्रेम और दया से भरा हुआ था। भीड़ विस्मय में देखती रही क्योंकि चमत्कार उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। तुरंत उन्हें अपनी दृष्टि मिल गई और वे उसके पीछे हो लिए। उनका आनंद अवर्णनीय था क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखा और पहली बार दुनिया को देखा। वे कृतज्ञता से भर गए और उन्होंने यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। उनका जीवन उनके स्पर्श से हमेशा के लिए बदल गया।
है।